Hello students, I am back with my session number 2 of chapter number 6, Rocks and Minerals. Kids, in first session what we have done? We have done vocabulary words and meanings, right? In today's session I am going to explain about rocks and types of rocks. There are so many different kinds of rocks are there. But in this session I am only going to explain you two types of rocks. Number 1, igneous rocks, and number 2, sedimentary rocks. Clear, kids? But before I start explaining all the things about these rocks, let me revise you all the things about session 1, vocabulary words and meaning. चलो फटाफट से कर लेते हैं. चलो vocabulary words. Number 1, rocks. R-O-C-K-S, rocks. Number 2, pumice. P-U-M-I-C-E, pumice. Number 3, granite. G-R-A-N-I-T-E, granite. Number 4, igneous. I-G-N-E-O-U-S, igneous. Number 5, magma. M-A-G-M-A, magma. Number 6, basalt. B-A-S-A-L-T, basalt. Number 7, fossil. F-O-S-S-I-L, fossil. Number 8, lava. L-A-V-A, lava. Number 9, ores. O-R-E-S, ores. Number 10, magnet. M-A-G-N-E-T, magnet. Number 11, metamorphic. M-E-T-A-M-O-R-P-H-I-C, metamorphic. Number 12, sedimentary. S-E-D-I-M-E-N-T-A-R-Y, sedimentary. Number 13, volcano. V-O-L-C-A-N-O, volcano. Number 14, coal. C-O-A-L, coal. Number 15, utensils. U-T-E-N-S-I-L-S, utensils. फटाफट से मीनिंग्स देख लेते हैं. Number 1, sediments. Sand, stones, mud and so on carried by water or wind and the left for example on the bottom of a lake or river. कोई भी water body हो उसमें कोई भी sand, mud, soil, rocks, stones, ये सारी की सारी चीजें अगर सेटल डाउन नीचे बॉटम में हो जाते हैं, that is called sediments. Number 2, ore. Rock, earth and so on from which metal can be obtained. ऐसी चीजें जिसमें से हमें मेटल मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? ore. Number 3, fossil. An animal or plant that lived thousands of years ago which has turned into rock. Fossil एक ऐसी चीज है जो 1000 years ago के एनिमल्स जो होते हैं वो रॉक्स में कन्वर्ट हो गए होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? फॉसिल. Number 4, metamorphic rocks. Rocks that was once one form rock but has changed to another under the influence of heat, pressure or some other agent without passing through a liquid phase. कि ऐसी चीज जो पहले तो रॉक्स थी बट एक हीट के प्रेशर को देके उसको मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट कर दिया. क्लियर? Number 5, lava. Hot liquid rock that comes out of a mountain with an opening in the top. मतलब कि एक माउंटेन होता है उसके टॉप में एक ओपनिंग होती है जिसमें से लावा निकलता है, उसको हम क्या बोलेंगे? लावा. Clear, kids? Here we completed revision of session 1, right? Now let's begin our today's session about rocks. Open page number 243 of your textbook. Now rocks. Rocks are solid mineral substances found on the surface of the earth. Rocks एक solid substance है. क्या है kids? Solid कठोर substance है. वो हमें अर्थ के सरफेस पे मिलता है.
किड्स आप बाहर जाते हो तो आप डिफरेंट रॉक्स देखते हो ना, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई ग्रे कलर के होते हैं, कोई ब्लैक कलर के होते हैं, कोई व्हाइट कलर्स के होते हैं. सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स आर देयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट? Whenever you go outside from your city, तो जैसे जैसे जितनी प्लेस चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग रॉक्स भी चेंज होते हैं, राइट? Many metals and minerals are obtained from rocks. ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं और ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जो रॉक्स में से obtained होते हैं. क्या होते हैं? मतलब कि रॉक्स में से हमें मिलते हैं. There are so many different kinds of rocks, metals and minerals which is found from rock. Clear? Now, types of rocks. The action of wind and rain affects the formation of rocks. मतलब जो rocks बनते हैं ना, उसमें कौन सी चीज अफेक्ट करती है? एक तो wind अफेक्ट करता है और दूसरा rain. वो रॉक्स की फॉर्मेशन को चेंज कर देता है. Depending on how they are formed, rocks are grouped under 3 types. मतलब कि wind और rain की वजह से रॉक्स की फॉर्मेशन चेंज हो जाती है. उस वजह से रॉक्स के टाइप्स कैसे बन जाते हैं? डिफरेंट बन जाते हैं. जैसे कि हम बनाने वाले कुछ और होते हैं, बट विंड और रेन की वजह से बन जाता कुछ और. तो उस तरह से रॉक्स की अलग डिफरेंट वे में बन जाते हैं. तो एक होता है कि उसके ग्रुप्ड हो गए. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप. नंबर 1 इग्नियस, नंबर 2 सेडिमेंट्री एंड नंबर 3 मेटामॉर्फिक. क्लियर? तो हमें एक आइडेंटिफाई करना है कि ये इग्नियस रॉक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है या फिर ये सेडिमेंट्री रॉक है, जो कि विंड और रेन के प्रेशर की वजह से उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो चेंज हो गई होती है. नाउ नंबर 1 इग्नियस रॉक. The word igneous comes from the Latin word ignis, which means fire. Igneous rocks, ये जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है? वो लैटिन वर्ड है. वो हम कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है. वो हमारा वर्ड नहीं, लैटिन वर्ड है और उसका मीनिंग होता है फायर, आग, अग्नि. આપણે કહીએ ને किड्स, तो igneous का मतलब क्या होता है? फायर. The molten rock inside a volcano is called magma. मतलब वोल्केनो के अंदर एक हॉट लिक्विड होता है, उसको क्या बोलेंगे? मैग्मा. कीप इट इन योर माइंड कि वोल्केनो के अंदर एक हॉट लिक्विड होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्मा. When a volcano erupts, the magma that rises to the surface and flows out is called lava. Volcano erupts मतलब वोल्केनो जब फटता है तब उसमें से क्या बाहर आता है? लावा. हॉट मॉल्टन लिक्विड जो बाहर आता है उसको हम क्या बोलेंगे? लावा. जब वो अंदर होता है तो उसको क्या बोलेंगे? मैग्मा. क्लियर द डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा? कि वोल्केनो के अंदर जब वो रहता है हॉट लिक्विड तब उसको क्या बोलेंगे? मैग्मा. जब वो फट के बाहर आता है वो लिक्विड तब उसको किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लावा में कन्वर्ट हो जाता है. When the magma और लावा cools, मतलब कि वो जो मैग्मा और लावा बाहर आके कूल हो जाते हैं, it hardens to form igneous rocks. मतलब कि वो धीरे करके ठंडे होना स्टार्ट हो जाते हैं. एक दिन वो पूरे ठंडे हो जाते हैं, राइट? तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इग्नियस रॉक्स में. मतलब कि वो जो लिक्विड होता है, लिक्विड जैसे जैसे ठंडा होता जाता है तो किसमें? हार्डन, मतलब कि कड़क थावा मंडे. तो कड़क थावा मंडे तो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो उसमें भी 2 टाइप्स के रॉक्स हो जाते हैं. नंबर 1 ग्रेनाइट रॉक्स, नंबर 2 बासल्ट रॉक्स, नंबर 3 प्यूमाइट रॉक्स एंड नंबर 4 ऑब्सीडियन रॉक्स. तो वो जो ठंडा पड़ जाते हैं उसमें भी 4 टाइप्स होती है कि किस तरह से ठंडे हो जाते हैं.
कोई कोई में से बीच में एयर निकल जाती है, एयर वाले होते हैं तो एयर निकलती है तो होल हो जाते हैं। कोई कोई होते हैं वो जो विदाउट एयर होते हैं तो वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है। नाउ सॉरी, नंबर 1, ग्रेनाइट is formed when magma cools below the surface of the earth। मतलब जो अर्थ के सरफेस के नीचे वो ठंडा हो गया रह जाता है तो किसमें फॉर्म हो जाता है, वो ग्रेनाइट में फॉर्म हो जाता है। ग्रेनाइट इज अ वेरी हार्ड रॉक। ग्रेनाइट है ना वो बहुत ही हार्ड रॉक है। कैसा रॉक है, हार्ड रॉक होता है। तो वो इट इज यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल की मतलब कि कोई भी बिल्डिंग का मटेरियल बनाना होता है ना तो उसमें हम उसको यूज करते हैं या तो फिर उसको यूज में लेते हैं। नाउ नंबर 2, बासल्ट। Basalt is formed when the lava cools on the earth surface। वो क्या था ग्रेनाइट की वो अर्थ सरफेस के नीचे ठंडा होके रह जाता था। ये बासल्ट क्या है कि वो अर्थ के सरफेस के ऊपर लावा जो रहता है ना वो ठंडा हो जाता है, राइट। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बासल्ट में। It is dense and dark and has fine grains। मतलब वो बहुत ही डेंस होता है, बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही डार्क होता है और एकदम उसमें क्या होते हैं, फाइन ग्रेन्स होते हैं। इट इज फुल ऑफ ग्रेन्स होता है वो वाला पत्थर, राइट। नाउ नंबर 3, pumice, right? Pumice is formed when the lava cools quickly with a lot of air trapped within it। मतलब pumice एक ऐसा रॉक है कि वो फटाफट से ठंडा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एयर फिल्ड हो गई होती है। क्या हो गई होती है, एयर ट्रैप हो गई होती है। जब वो लावा नीचे आता है ना तब तो एयर ट्रैप हो गई होती है तो बहुत नेचुरल वो निकलने वाली है तो लावा फट के निकलेगी, राइट। तो मतलब कि उसने छोटे छोटे से हॉल्स कर दिए होते हैं। क्या हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं, इसलिए वो क्विकली ठंडा हो जाता है। क्लियर। तो ये जो pumice होता है ना उसके अंदर एयर के छोटे छोटे होल्स होते हैं। It has many holes in it, which makes it very light and helps it to float। कि उसमें holes हो जाते हैं उस वजह से जो वो pumice होता है बहुत ही लाइट वेट होता है। कैसा होता है, बहुत ही लाइट वेट होता है और इजीली वाटर में फ्लोट करता है, इजीली वाटर में तैरता है। क्लियर। नाउ लास्ट वन, नंबर 4, obsidian। Obsidian is also formed by rapid cooling of lava। Obsidian एक ऐसा रॉक है वो भी फटाफट से ठंडा होके रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। But has smooth and glass appearance। It is black or dark in color। But वो कैसा होता है, बहुत ही स्मूथ और ग्लासी सरफेस। स्मूथ मतलब एकदम स्मूथ और ग्लासी सरफेस मतलब ग्लास જેટલું લીસું સરફેસ હોય એનું। ગ્લાસને આપણે ટચ કરીએ તેમાં રફ સરફેસ લાગે નો લાગે, एकदम લીસું લીસું લાગે, राइट। तो बिल्कुल उसी टाइप का सरफेस होता है। वो एकदम डार्क ब्लैक कलर, ब्लैक या तो फिर कोई भी डार्क कलर के होते हैं। क्लियर किड्स, आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स अबाउट igneous rocks। आपको समझ में आया ना igneous rocks के बारे में। Now let's start sedimentary rocks। Wind and water carry small bits of rocks into lakes and oceans। कि wind और water एक ऐसी चीज है कि वो सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स के rocks, twigs, stones, clay वो किस में लेके जाते हैं, वाटर में लेके जाते हैं, राइट। The bits of rocks that settle on the ocean floor are known as sediments। कि वो सारी की सारी चीजें ओशियंस में नीचे सेटल हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं, जब वो नीचे बैठ जाते हैं तो क्या हो जाता है, सेडिमेंट्स। आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कोई भी आप ग्लास ले लो मिरर वाला, कोई भी जिसमें विजिबल हो अंदर का, आप उसमें कोई भी पानी में पेबल्स, मड, सैंड कुछ भी डाल दो। आफ्टर हाफ एन आवर या
1 एंड आवर आप देखना ये सब कुछ सेटल डाउन हो गया, ऊपर का पानी एकदम क्लियर हो जाएगा और सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। इट मींस ऑल द सेडिमेंट्स सेटल्ड डाउन, वो सारे के सारे सेडिमेंट्स सेटल डाउन हो गए और इन द फ्लोर ऑफ ग्लास, वो ग्लास की फ्लोर पे सेटल डाउन हो गए, राइट। ये से ही बिल्कुल सारी की सारी चीजें जो होती है वो ओशियंस के फ्लोर पे सेटल डाउन हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स। Sedimentary rocks are formed when layers of sediments pile up over the thousands of years and harden. मतलब कि thousands of years तक एक ने उसी जगह पे वो sediments जमा रहते हैं, right? तो वो after thousands of years किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, sedimentary rocks में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, sedimentary rocks। Clear? Sometimes the remains of plants or animals get trapped between the sediments. The soft papers of the dead organisms rot away with time, while the hard part leave behind an impression of the rocks. Such impressions are called fossils. जब ये sedimentary rocks बन जाते हैं, right? तो वहाँ पे तो नीचे leaves है, twigs है, ये सब कुछ settle down होता है, right? तो कोई कोई की प्रोसेस कंटिन्यू होती है, कोई कोई होता है जिसके अंदर दब जाता है ये सब कुछ। तो टोटली जब उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है तो ये कोई कोई चीज जो होती है वो दब जाती है, कोई भी एनिमल दब जाता है, कुछ भी अगर वाटर के अंदर की चीज है वो दब जाती है, तो वो क्या हो जाता है कि उसकी इंप्रेशन, मतलब कि उसका जो होता है ना वो दब जाता है। मैंने वोकेब्युलरी वर्ड्स में फॉसिल का पिक्चर दिखाया था कि पत्थर था, उसमें कुछ एनिमल के इंप्रेशंस हो गए थे, क्योंकि वो एनिमल था वो पत्थर में दब गया होता है। जब वो कोई भी रॉक है वो फॉर्म होने वाला होता है तब, राइट। तो वो उसकी इंप्रेशन उसमें आ जाती है और वो उसमें मिक्सअप एडअप हो जाता है, पर छापे मैंने वहां पड़ी जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉसिल। FOSSIL फॉसिल, हम उसको क्या बोलेंगे, फॉसिल। सैंडस्टोन, conglomerate, limestone and shell are examples of sedimentary rocks. मतलब these are the examples of sedimentary rocks. How many examples are there? There are 4 examples of sedimentary rocks. Number 1 sandstone, number 2 conglomerate, number 3 limestone and number 4 shell. So chalo, number 1 sandstone. Sandstone is a soft stone formed from the particle. Sandstone में खुद ही बोल रहा है, sandstone मतलब एकदम सैंड से बनता है स्टोन, राइट, सैंडस्टोन। तो वो कैसा होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता है जो सैंड पार्टिकल से बना होता है। किस में से बना होता है, सैंड पार्टिकल में से बना होता है। इट इज यूजुअली येलो, रेड और पिंक इन कलर। उसके कितने कलर्स होते हैं, 3 टाइप्स के कलर, येलो, रेड या पिंक कलर। The Red Fort in Delhi is made of red stone. दिल्ली का रेड फोर्ट देखा है किड्स आपने, वो पूरा का पूरा रेड स्टोन से ही बना है। दिल्ली का रेड फोर्ट वो रेड स्टोन से ही बना होता है, दैट्स व्हाई उसका नाम क्या है, रेड फोर्ट। उसी वजह से उसका नाम क्या पड़ा है, रेड फोर्ट। क्लियर। नाउ नंबर 2 लाइमस्टोन। Limestone is made up of fine soft grains and contains minerals such as calcium along with animal shells. Chalk is one form of limestone. Limestone एक ऐसी चीज है जो एकदम सॉफ्ट ग्रेन्स और फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसमें से बनी होती है। लाइक कैसे कैसे फाइन पार्टिकल्स, या तो कैल्शियम या तो एनिमल्स के शेल्स। एनिमल्स का जो शेल्स होते हैं ना, जैसे कि टॉर्टोइस के शेल्स, शेल के शेल्स से, तो ये सारे के सारे शेल्स से ये लाइमस्टोन बनते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। चॉक इज वन ऑफ द लाइमस्टोन, मतलब चॉक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लाइमस्टोन। मतलब कि
लाइमस्टोन जो है वो कौन से टाइप का स्टोन है, मतलब उसमें से कौन सा स्टोन बनता है, चौक। क्लियर? नाउ नंबर 3, शेल। Shell is made of clay and mud particles piled up in layer. Shell है वो किससे बनता है, तो कि क्ले से बनता है और मड पार्टिकल से बनता है। किसमें से बनता है, क्ले और मड पार्टिकल से लेयर में वो जम जाता है और फिर बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, शेल में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, शेल में। नाउ लास्ट वन, conglomerate. Conglomerate is made up of coarse grains formed from pebbles and gravel. It is usually grey or orange in color. Conglomerate है वो किससे बना होता है, तो कि वो coarse grains से बना होता है and formed from pebbles. Pebbles खबर है kids? नाना नाना गोल गोल एकदम लीसा लीसा stones होए उसको pebbles बोलते हैं। It is usually grey or orange in color. वो normally grey और orange color के होते हैं, right? तो ये थे, these are the types of sedimentary rocks. Kids, here we completed our session number 2. In session number 2, what I explained you? I explained you about rocks and types of rocks. How many types of rocks are there? 3 types. Igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks, right? In today's session, I explained you about igneous rocks and sedimentary rocks. There are how many types of igneous rocks are there? 4 types. Number 1, granite. Number 2, basalt. Number 3, pumice. Number 4, obsidian, right? Now, how many types of sedimentary rocks are there? Even sedimentary rocks are also of 4 types. Sandstone, conglomerate, limestone and shell, right? So kids, in next session I am going to explain about metamorphic rocks and minerals, and about ores and uses of minerals. In session number 3 I am going to explain about these things. Before I complete this session, I have shared a PDF with you, right? फिर आपको blanks की PDF भेजी है, right? Try to solve it by your own self. अगर ये session आप अच्छी तरह से अपने आप देख रहे हो, अच्छी तरह से समझ में आ गया है, so you can answer that blanks by your own self, kids. Okay? So till next session, kids. Bye.